پشتو کے عظیم صوفی شاعر کا نام بتائیے۔ رحمان بابا۔ رحمان بابا، جواب درست۔ دوسرا سوال کہ یند نامی کتاب کس مذہب کے ماننے والوں کی مقدس کتاب ہے؟ یہ بدھ مت۔ جی، بدھ مت۔ آپ نے کہا بدھ مت، یہ زرتشت یا پارسیوں کی مقدس کتاب ہے، ایک غلطی ہو گئی۔ پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے مصرے ہیں؟ 15۔ جواب درست ہے۔ آپ کے 2 جواب درست ہو گئے، کوئی انعام ابھی تک نہیں نکلا۔ میرا دوست بتائے گا کہ ان 2 جانوروں کے نام جنہیں بغیر حلال کیے کھایا جا سکتا ہے۔ ایک تو مچھلی ہے۔ ایک تو مچھلی ہوئی، کیکڑا بھی ہے۔ جواب درست مانتے ہیں۔ آپ نے جو پہلا سیریلک والوں کا انعام جیتا ہے وہ ٹوسٹر اور 500 روپے ہیں، مبارک ہو۔ اب آپ کے لیے جو انعام بھیجا گیا ہے یہ مصری لون بنانے والوں نے بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے نکھار کے لیے 100% امریکن ایجپشن کاٹن سے تیار کردہ مصری لون بنانے والے کیمیٹیکس انڈسٹریز لمیٹڈ کراچی۔ سوال ہے کہ پہلے ایشیائی باشندے کا نام جس نے 1913 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا؟ جوگندر ناتھ رابندر ناتھ ٹیگور، جواب درست ہے صاحب۔ شاباش۔ جاپان کے سب سے اونچے آتش فشاں کا نام؟ فیوجی ہاما۔ شاباش۔ فیوجی ہاما۔ فیوجی یاما۔ آپ نے جو مصری لون بنانے والوں کا انعام جیتا ہے وہ سنگر واشنگ مشین ہے، سنگر واشنگ مشین۔ اب چندہ بیٹری سیل بنانے والوں نے انعام بھیجا ہے، یہ ہے ڈیک۔ چندہ بیٹری سیل بہترین کوالٹی کی بنا پر پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ ٹرانزسٹر، ریڈیو اور کیسٹ ریکارڈر کے لیے اس کا نرم و ملائم جھاگ آپ کی جلد کی حفاظت کرتا ہے، حسن اور رنگت کو نکھارتا ہے۔ تبت ڈیلکس ٹوائلٹ سوپ۔ سوال ہے کہ سندھ میں موہنجو دڑو کے آثار قدیمہ کب دریافت ہوئے اور کس نے دریافت کیے؟ سر جان مارشل نے دریافت کیے 1922 میں۔ 1922، سر جان مارشل۔ آپ سے سوال کتنے پوچھنے ہیں؟ 15۔ ماشاءاللہ۔ غلطیاں کتنی ہوئی؟ ایک غلطی ہوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید نسیم الدین۔ آپ پہلے بھی کوئز شوز میں آتے رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کبھی جیتا کچھ آپ نے؟ مطلب ٹی وی کے مقابلے میں کبھی نہیں جیتا، اس کے علاوہ اسٹیج پہ بے شمار انعام جیتے ہیں۔ اچھا، آج تو آپ نے ہمارا حشر کر دیا۔ اچھا میرے دوست، سوال ہے کہ ایک کردار قد 6 فٹ 2 انچ، چوغے نما لباس، سر پر ہیٹ، منہ میں پائپ اور ہاتھ میں ایک عدسہ، نام بتائیے۔ شرلاک ہومز۔ شرلاک ہومز۔ میرے دوست، اب میں آپ کے سامنے ایک ٹوکری لا رہا ہوں۔ اب میرے پاس کچھ بڑے انعامات ہیں جن میں کلر ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ پرچیاں ہیں ٹوکری میں، ان میں سے آپ ایک پرچی اٹھا دیں، گویا آپ کس بڑے ایک انعام کے لیے اب لڑائی کریں گے۔ اب آپ کا مقابلہ ہے ہمارے انعام ایئر کنڈیشنر کے لیے جو آپ 5 سوالوں پر جیت سکتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر میرے دوست بھیجا گیا ہے وائٹ ویسٹنگ ہاؤس ایئر کنڈیشنرز۔ وائٹ ویسٹنگ ہاؤس ایئر کنڈیشنر یہ کہتے ہیں کہ مناسب قیمت پر مکمل گارنٹی کے ساتھ وائٹ ویسٹنگ ہاؤس ٹھنڈک جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے دوست، آپ کے پاس 2 غلطیوں کی گنجائش اور ہے، گویا میں آپ سے 7 سوال پوچھوں گا، 5 کے جواب دے دیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ پٹھانوں کی رومانی کہانیاں، سیاسی کارناموں اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہے حجرہ۔ بتائیے حجرہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حجرہ عربی کا لفظ۔ عربی۔ یہ بتائیں کہ محمود غزنوی نے زیادہ علاقہ فتح کیا یا سکندر اعظم نے؟
सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। दो सवालों के जवाब और दे दें। बताइए, रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर? मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70। नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। हर के मरहले के दावेदार बने बैठे हैं। इनका मुकाबला अब उनसे होगा और इन दोनों में से एक दोस्त को अगले प्रोग्राम तक जाना होगा। हत्ता के 7वें प्रोग्राम तक जो पहुंच जाएगा, मास्टरमाइंड कहलाएगा, वो हमारी कार का हकदार होगा। मेरे इस ज़हीन दोस्त ने पिछले प्रोग्राम में कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 इनाम जीते और सबसे बड़ा इनाम, आखिरी इनाम जो 15वें सवाल पर था, वो एयर कंडीशनर भी ये मासूम चेहरा हमारा नीलाम घर उजाड़ के गया है और अल्लाह करे कि ये आज भी बहुत सा जीते। कार का मरहला शुरू होता है। ये कार भेजी है लाइफ बॉय बनाने वालों ने। इनका पैगाम है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जब। ये बताएं, अवामी जमहूरिया चीन के ताउन से मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। उसका नाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। मेरे दोस्त, अंग्रेजी जबान में गैर शादीशुदा खवातीन के लिए मिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका उर्दू में मुतरादिफ क्या है? इसको हम आंसा या मुसम्मात वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। आंसा। तीसरा सवाल मेरे भाई, कि फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। मेरा चौथा सवाल आपसे कि दुनिया का सबसे पहला सिनेमा घर यूरोप के किस शहर में तामीर किया गया? पेरिस। पेरिस। 1886 में पेरिस में दुनिया का पहला सिनेमा घर तामीर हुआ। मेरे दोस्त, सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? ये हिंदू कुश में है। ये ग्लेशियर ये मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में
कुल कितने बर्रे आज़म ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म हैं। हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं सर। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ? नहीं 5 है, सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे हैं जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए, जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका है, बता दिया, अटलांटिका है, अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा। एक एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि एक एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टेली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। नहीं बात। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। ख्वातीन और हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए। अब सिर्फ 3 प्रोग्राम बाकी हैं कि कार का फैसला होने वाला है। हाफिज साहब 2 प्रोग्रामों के विनर हैं और ये कार हमारे लिए भेजी है लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। कहते हैं कि दिल्ली साहब, ये मेरे पास 3 लिफाफे हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दें जो मैं पहले हसन सिद्दीकी से पूछ लूं। ये लिफाफा हसन के लिए, एक हाफिज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त, पहला सवाल है कि बताएं मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है?
196 फीट 6 इंच। 196 फीट 6 इंच। पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन। तीसरा सवाल कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के जेल खाने से दुनिया के किस मशहूर इनकलाब का आगाज हुआ था? 1789। इनकलाब फ्रांस। इनकलाब फ्रांस। शाबाश। आपसे चौथा जवाब सवाल कि जब हम कसीदा बुर्दा कहते हैं तो किन बुजुर्ग का नाम हमारे जहन में आता है? अबू सर या सैर कोई। अबू सैर। मोहम्मद बिन सईद बोसेरी। जवाब गलत मानता हूं जी। बहरहाल जी मोहम्मद तो उनका नाम, ये तो बिन आगे चलता है, एक गलती मान लीजिए। हसन, दुनिया फिल्म का सबसे बड़ा मरकज हॉलीवुड किस अमरीकी रियासत में है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। मेरे दोस्त जरा बताएं कि खला में सबसे पहले कौन सा गाना गाया गया? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। आसान सवाल आसान सा है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम? कुली कुतुब शाह। दक्कन के बादशाह कुली कुतुब शाह। ये बताएं कि हुजूर ने कुल कितने गज़वात में शिरकत की? वक्त महदूद है जी। 1 2 9 3। छोटे बड़े कुल 27 गज़वात में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अंबिया और रसूल में क्या फर्क है? रसूल की अपनी शरीयत होती है और अंबिया वही पिछले नबी का पिछले रसूल का पैगाम लेके आए होते हैं। और कोई सहीफा या कोई और रसूल आसमानी सहीफा लेके आता है। सुन्नत। रसूल पर किताब नाजिल होती है और अंबिया पर किताब नाजिल नहीं होती। जवाब दुरुस्त है जी। वो कौन सा शेर है जो अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बाले जबरील के पहले सुफे पर लिखा हुआ है? 1 2। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। शाबाश। इस वक्त हसन से 10 सवाल पूछे, जिनमें से 8 सवालों के जवाब पानी की रवानी की तरह इनके अजहान से उतरे। नसीम, मेरा पहला सवाल है कि किताबुल हिंद किसकी शोहरा आफाक किताब है? अल-बैरूनी। अल-बैरूनी। मीज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनको कहा जाता है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। 2 जवाब दुरुस्त हुए। इथोपिया नामी मुल्क तो बर्रे आज़म अफ्रीका में है, बताइए यूटोपिया कहाँ है? या ये कोई और चीज है, ये मुल्क नहीं, जगह नहीं है। यूटोपिया एक ख्याली रियासत है, इसका कोई मकाम नहीं। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, उन 2 सहाबियों में से किसी एक का नाम ले दीजिए जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। शाबाश। अब यह बता दें कि पाकिस्तान का पहला सिक्का कब जारी हुआ था? पहला सिक्का 1948। 1948। शाबाश।
सवाल निकला है कि किन 5 अदीबों और शायरों को उर्दू के अनासर खमसा कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, मौलाना हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल यह है कि तिब्बे इस्लामी का इमाम किसे समझा जाता है? इब्नुल हैसम, नहीं सॉरी, मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी। एक गलती हुई जी। अच्छा जी, दुनिया का सबसे पहला स्टेडियम किस मुल्क में बनाया गया? यूनान में। यूनान। मुफ्ती आजम फलस्तीन अलहाज सैयद अमीनुल हुसैनी ने बैतुल मुकद्दस की तारीखी मस्जिद उमर में बर्रे सगीर की तहरीक मोहम्मद अली जौहर का नमाज जनाजा पढ़ाया था, की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। आखिरी सवाल मेरे दोस्त, हर किताब का एक मौजू होता है, बताएं कुरान का मौजू क्या है? कुरान का मौजू इंसान है। इंसान। ख़वातीन और हज़रात, कार के मरहले में आज इतने दिलचस्प मुकाबले के बाद बहरहाल 1 नंबर पर हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं। अगले प्रोग्राम के तक फिर कार के दावेदार हैं और हसन सिद्दीकी जिन्होंने बहुत खूबसूरत मुकाबला किया, खुदा इनकी जहानत को और तेज करे। लाइफ बॉय बनाने वालों की तरफ से इसमें आपके लिए 800 रुपए के पास। सिलसिला यह है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन के बीए के तालिब इल्म हैं, वो कार के हकदार मुसलसल दूसरे दोस्तों को शिकस्त देते हुए चले आ रहे हैं और आज का मुकाबला आज के विनर से है हाफिज नसीमुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, हाफिज नसीमुद्दीन के पिछले प्रोग्राम के विनर शहबाज अहमद आज के प्रोग्राम के विनर, और एक जो तरीकेकार तय था उसके तहत हाफिज नसीम को आज मुकाबले के दौरान 4 नंबरों की बर्तरी हासिल है, इसलिए कि ये मुसलसल 3 प्रोग्रामों के मास्टरमाइंड चले आ रहे हैं। गोया अगर टाई का मसला हुआ तो हाफिज से मैं 15 सवाल पूछूंगा, 16 सवाल पूछूंगा और आपसे 10 सवाल पूछूंगा जी। आपको चलिए हक दिया। ये 3 लिफाफे पड़े हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा मुझे चुन दें कि जो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। आप दोनों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं लाइफ बॉय बनाने वालों के। दुनिया की सबसे बड़ी झील जो समंदर भी है उसका नाम बता दें। कैस्पियन। दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों के नाम बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, केटुई चोटी, हिमालय, कोहे कराक्रम और नंगा पर्वत। मेरे दोस्त, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार मुबारक कहाँ है? अबवा के मकाम पर। मदीना और मक्का के दरमियान अबवा के मकाम पर। दुनिया इस्लाम का सबसे पहला साइंसदान कौन था? इब्ने रश्द। खालिद बिन यजीद दुनिया इस्लाम का पहला साइंसदान गिना गया। एक गलती हो गई। यह बताएं कि गारे हरा मक्का से कितने मील दूर है? 3 मील। मुद्दत हुई जापानी शहनशाह कोटोकू ने जापान के लिए निप्पॉन का नाम इख्तियार किया था, बताइए इसके क्या माना है? निप्पॉन एक बम
बम है। नहीं मेरे भाई, तुलुए आफताब की सरजमीन, गलती हो गई जी। सवाल यह है कि सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ? शाबाश। 2 हिजरी में। सूद सन 9 हिजरी में हराम हुआ, गलती हो गई। कितनी गलतियां? आपसे 3 गलतियां हो चुकी हैं। आप बता सकेंगे कि जॉन ऑफ आर्क के शौहर का क्या नाम था? यह फ्रांस की जो हेरोइन थी जॉन ऑफ आर्क, उसके शौहर का नाम। वक्त हुआ। इस खातून ने शादी ही नहीं की थी। मेरा आपसे सवाल है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है आजकल किस शहर में है? पेरिस में। पेरिस। मेरे दोस्त, उर्दू जुबान के उन मशहूर नॉवेल निगार का नाम, कलमी नाम बता दीजिए जिनका असली नाम असरार अहमद। क्या नाम? इब्ने सफी। इब्ने सफी। मेरे दोस्त, आपसे 10 सवाल पूछे गए, आपने 6 के जवाब दुरुस्त दिए और 4 गलतियां आपसे हुई थी। हाफिज साहब, आपके सामने ये 2 पड़े हैं जी लिफाफे, कोई एक उठा दीजिए। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह करते हैं कि चांद की कशिश जमीन की कशिश से कितनी कम है? 9 गुना। आपने कहा 9 गुना, हालांकि चांद की कशिश जमीन से 6 गुना कम है। एक गलती हो गई। हिम्मत से, रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? शाबाश। बर्तानिया तो नहीं, जर्मनी। रिक्शा जापान की इजाद है, गलती हो गई जी। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? वहां रेलवे स्टेशन है ही नहीं। नेपाल में रेलवे का निजाम नहीं है। शाबाश। हिम्मत से, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहां है? मोगलपुरा, लाहौर। इस्लाम के सबसे कम सिन सिपह सालार का नाम बता दें। असामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे और छठे कलिमों के नाम बता दीजिए। तीसरा तमजीद और छठा जो है रद्दी को, छठा का रद्दी कुफ्र। मेरे दोस्त, आप उन खातून का नाम बता सकते हैं जिन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये मेरी माँ है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा गर्मजोशी नहीं पैदा हो रही जी। ये बताएं कि कुनीन किस दरख्त की छाल से हासिल होती है? ये जो मलेरिया में काम आती ना, सिनकोना। गलती हो गई जी। मेरे दोस्त, निशान हैदर गाजी को उसकी जिंदगी में दिया जाता है या बाद अज़ शहादत? पाकिस्तान में तो अब तक जितनों को भी दिया गया है बाद अज़ मर्ग दिया गया है। बाद अज़ शहादत जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा। गन्ने की पैदावार में हमारा छठा। चौथा नंबर है। और इसको मैं आधा जवाब दुरुस्त मानूंगा। कितनी गलतियां होगी? 6 के जवाब आपने दिए हैं जी और 6 के जवाब उन्होंने दिए। आपको जो मार्जिन है कि आपसे मैं चूंकि आप वो लाइसेंस आपके पास है 5 सवालों का, मैं आपसे 5 सवाल मजीद पूछूंगा। अगर आपने इनमें से एक भी जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप जीत जाएंगे। दुनिया का कदीम तरीन तराना किस मुल्क का समझा जाता है? ये कैमी गोयो है, ये डेनमार्क का है। जापान का तराना दुनिया का कदीम तरीन तराना समझा जाता है। मेरे दोस्त, इस्तिलाम से क्या मुराद है? ये हिजरे अस्वद को बोसा देना। ये हजरे अस्वद को चूमना। आप 7 सवालों के जवाब दुरुस्त दे चुके। आज के विनर फिर आप हैं और लाइफ बॉय बनाने वालों की कार के अभी तक मास्टरमाइंड यही है।
خواتین و حضرات، دفعہ پھر بتا دوں کہ حافظ نسیم پچھلے 4 پروگراموں کے ونر کی حیثیت سے اس وقت 4 سوالوں کے بونس کے ساتھ موجود ہیں، اور حمید صاحب پہلے میں آپ سے 10 سوال پوچھ رہا ہوں۔ میرے دوست، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ نماز جمعہ سب سے پہلے کس مسجد میں ادا کی گئی؟ مسجد قباء۔ جواب درست ہے صاحب۔ مولانا حسرت موہانی کو 1908 میں کس جرم میں قید کی سزا ہوئی؟ انگریزوں کے خلاف جو آپ نے راست اقدام اس میں حصہ لیا تھا، مسلمانوں کی تحریک حمایتی سلسلے میں۔ میں جواب درست مان لیتا ہوں، لیکن اصل جواب جو ڈاکٹر ابواللہ صدیقی صاحب کا ہے، انہوں نے کہا کہ مصر میں انگریزوں کی پالیسی، حسرت نے مضمون نگار کا نام ظاہر نہیں کیا بتانے کے باوجود، لیکن بہرحال آپ نے بھی انگریز دشمنی کہا، یہاں بھی انگریز دشمنی ہی ہے، تو جواب نرم ہو کے درست مان لیتا۔ اقبال کا مصرع ہے، ٹھہر ٹھہر کے بہت دل کشا ہے یہ منظر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کسی مقدس جگہ کی جانب اشارہ؟ یہ ایک چینی حکیم کی طرف اشارہ ہے، جواب غلط ہوا جی۔ چوتھا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قدرتی غار کہاں ہے؟ یہ کسی بر اعظم کی طرف اشارہ کریں؟ نہیں، میں اشارے تو زندگی بھر کسی کو نہیں کیا، آپ کو کیا کروں؟ جی، بیروت کے مضافات میں اتفاقاً دریافت ہوا وہ جگہ جہاں روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا۔ سری لنکا میں آدم کی چوٹی کراتی۔ سری لنکا، جواب درست مان لیا جائے۔ یہ بتا دیں کہ اشوک کے قدیم کتبات میں پاکستان میں موجود ایک کتبہ کہاں پر ہے؟ یہ ٹیکسلا میں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ شہباز گڑھی مانسیرا، غلطی ہو گئی۔ میرے دوست، اقرا پہلی وحی ہے، ترتیب قرآن حکیم میں یہ کون سی سورہ میں ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ اس میں 5 آیات ہے۔ اب یہیں رک جائیں کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ سورت 96 ہے، آیات کی تعداد 19 ہے، غلطی ہو گئی جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام۔ 8 سوال ہو چکے جی۔ قرآن حکیم میں احسن القصص کس قصے کے متعلق کہا گیا ہے؟ قصہ یوسف۔ سورہ یوسف، جواب درست ہے جی۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے قیام کی تحریک کہاں ہوئی؟ علی گڑھ۔ علی گڑھ، جواب درست ہے صاحب۔ میرے دوست، آپ سے 10 سوال پوچھے گئے، آپ نے 5 کے جواب غلط دیے اور 5 کے جواب درست دیے۔ نسیم، آج آپ کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ پہلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر خواجہ میر درد کا نام کیا تھا؟ شاباش، وقت ہوا۔ نصیر الدین۔ ان کا نام خواجہ میر تھا، غلطی ہو گئی۔ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش کرنے کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہفتے کا کون سا دن تھا؟ ہفتہ تھا جناب۔ ہفتہ تھا، جواب درست ہے صاحب۔ ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا موٹا لکھ لائیے گا، ہمیں بھی اینک نکالنی پڑی۔ سوال ہے میرے دوست کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی سے فرمائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، جواب درست ہے صاحب۔ علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جاتے ہوئے
किस मशहूर सूफी बुजुर्ग के मजार पर हाजिर होकर एक नज्म पढ़ी थी? ये मसनवी मुसाफिर पढ़ी थी ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे। आपसे 4 सवाल पूछे गए, आपने एक गलती की, 3 के जवाब दुरुस्त दिए। मस्जिद क़िबलतैन कहाँ वाक़े है? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा, जवाब दुरुस्त के साथ। कुस्तुनतुनिया की पहली इस्लामी लश्कर की फौजकशी के वक्त शरीक जिहाद सबसे मुअम्मर सहाबी कौन थे? मुअम्मर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जवाब गलत हुआ। मेरे दोस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी मशहूर इस्लामी सिपह सालार, इनकी तारीख वफात बताएं और ये भी बता दें कि ये कहाँ मदफन है? ये दमिश्क में मदफून है। दमिश्क में। और 1196 या 95 ऐसी कुछ सुना है। दमिश्क में इनकी आखिरी आरामगाह है और 1193, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जवाब मेरे दोस्त, मस्जिद कुर्तबा के बानी कौन थे? ये अब्दुल रहमान अव्वल। अब्दुल रहमान अव्वल, जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएं कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली, इसका बानी कौन था? इसका बानी कौन था, ये यूं ही पूछ रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जवाब दुरुस्त है साहब। ये बताएंगे कि खैरी बरादरान के नाम क्या थे? अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी। जब्बिना जब्बिना। ये कार जो हाफिज नसीम जीत चुके, ये आपके लिए भेजी थी लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। इनका कहना है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम, और इन कैमरों की गवाही के पूरे पाकिस्तान की गवाही है। लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों की तरफ से कार की चाबी हाफिज नसीम के हवाले। और इसके साथ ही और बहुत से तहाइफ के साथ ऑस्ट्रो पाक फैन बनाने वालों ने अपना पंखा आपके लिए भेजा है। कोटी वालों का तहाइफ हैं और आपके लिए बहुत से तहाइफ और पूरे पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं कि आप और ज्यादा इल्म हासिल करें और ज्यादा इल्म हासिल करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। एक छोटा सा इनाम है, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आप एक तालिब इल्म की हौसला। हाफिज सैयद नसीमुद्दीन। पिछले प्रोग्राम में आपने कार जीती, पूरा पाकिस्तान आपके चेहरे से आशना हुआ, लेकिन वो आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता था। बहुत से टेलीफोन्स हमें मौसूल हुए तो हमने आज आपको जहमत दी है। आप ये बताएंगे कि ये जो आपके साथ अलमिया हुआ, ये बचपन से पैदाइशी था या? ये मेरे जो आंखों की प्रॉब्लम है ये पैदाइशी थी, लेकिन बचपन में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था जो कामयाब हुआ। बाद में फिर आंखों में कुछ तकलीफ हुई
پھر آپریشن کرایا لیکن ڈاکٹر نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن خدا کو منظور نہ تھا, روشنی چلی گئی. تو روشنی کتنے سال تک آپ کا ساتھ دیا روشنی نے؟ تقریباً 10-11 سال تک. 10-11 سال تک. اچھا, یہ آپ کے نام کے ساتھ حافظ کا لفظ لگا ہوا ہے. حافظ آپ قرآن؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہوں. کہ آپ اتنے بہت سے سوالات, یہ آپ کیسے آپ تک یہ علم پہنچتا ہے؟ کیونکہ بریل میں تو اتنی کتابیں نہیں ہیں. یہ حصول تعلیم اور معلومات کے لیے میری مدد بہت سے لوگوں نے کی, لیکن ایک شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ میری بہن ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ. انہوں نے میری ہر معاملے میں مدد کی. اچھا نسیم, تو وہ کیا طریقہ کار کیا ہے آپ کا پڑھنے کا, یہ یاد کرنے کا؟ ایک تو بریل سسٹم ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے جن کا میں نے نام لیا صفیہ ملک صاحبہ کا, وہ کتابیں کیسٹس پر مجھے ریکارڈ کر کے دیتی ہیں اور میں اس کو سنتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ آج کل کس کالج میں اور کس ایئر میں ہیں؟ میں گورنمنٹ نیشنل کالج میں BA پارٹ 1 کا طالب علم ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی آفس میں بھی کچھ وقت گزارتے؟ میں گورنمنٹ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ میں ہوں اور ٹیلی فون اٹینڈنٹ کی حیثیت سے میں وہاں ملازمت کر رہا ہوں. ملازمت بھی کرتے ہیں. اچھا حافظ نسیم کے پاس ایک اور ہنر بھی ہے. آپ میں سے کوئی 1-2 دوست, زیادہ نہیں, کسی کو اپنی ظاہر ہے کہ سالگرہ یا شادی کا دن ضرور یاد ہوتا ہے. آپ ہمیں تاریخ, مہینہ اور سن بتا دیں, نسیم آپ کو دن بتا دے گا. آپ نے کہا نسیم 3 جولائی 1947 جمعرات. جی 2 مئی 1985. یہ جمعرات ہی ہے. جمعرات. جی کتنا مئی؟ 3 فروری 1965. یہ بدھ ہے. بدھ ہے. اچھا نسیم ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیں. نسیم اپنے دوستوں کو, خاص طور پر وہ جو چھوٹی سی معذوری کی وجہ سے زندگی میں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ لوگ اپنی معذوری کو پس پش ڈالیں اور اپنے ذات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے محنت کریں, اور اگر وہ محنت کریں گے تو ان کو کامیابیاں ملیں گی. بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو بالکل پس پش ڈال دیا, جس میں 2 محدثین ابن ماجہ اور ایک اور صاحب ہیں, اور انگریزی شاعر جان ملٹن, اس کے علاوہ مصر کے وزیر تھے. بہت سے نام ایسے ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں ہمیں کہ اگر وہ اپنی معذوری کو اگر اپنے اوپر رکھتے تو وہ آج اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جو آج ان کے پاس ہے. آج آپ تشریف لائے تو سپارکل ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی طرف سے ایک ڈنر سیٹ پیچھے نہیں رہا تھا. ڈنر سیٹ بھی آپ کو مبارک ہو, آج ہم نے آپ کے لیے ڈنر سیٹ. اور وہ جو لڑکوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ سامان بناتے ہیں, کیا ہوتا ہے, بری کہتے ہیں اسے, جہیز کہتے ہیں. جہیز تو لڑکی کا ہوتا ہے, لڑکے کا کیا ہوتا ہے, بری کہتے ہیں نا. تو اللہ چاہے ہم نے نسیم کی بری نیلام گھر سے بنا دی ہے. بہت شکریہ نسیم.